28واں باب جو کہ اس متی رسول کا انجیلی بیان اس کا 28واں باب، یہ اس کتاب کا آخری باب ہے۔ 28واں باب اس کی 18، 19 اور 20 ان 3 آیات کو ہم تلاوت کریں گے۔ جی 18ویں آیت کو میں پڑھوں گا اور 19ویں آیت کو بھائی پڑھیں گے اور 20ویں آیت کو بہنیں پڑھیں گے۔ جی ریڈی؟ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان کا سب عمل فرمان کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھ میں دنیا کا آخر کا ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ خداوند خدا کے پاک کلام کا پڑھا سنا اور سنایا جانا ہم سب کے لیے ویسے برکت ہو۔ سبھی کہیں آمین آمین۔ خداوند کا شکر ہو، خدا سب کو برکت دے، بڑی سنجیدگی سے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ چلے جائیں۔ یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ یسوع کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہاللیلویا ہاللیلویا، ایک بار اور ہاللیلویا۔ ہم یہاں خداوند کی تعریف کرنے کے لیے آئے ہیں اور یقیناً ہم خداوند کی تعریف کر رہے ہیں، اس کے نام کو جلال دے رہے ہیں، پرستش کے وسیلہ سے، کلام کے وسیلہ سے، دعاؤں کے وسیلہ سے، مناجاتوں دعاؤں التجاؤں کے وسیلہ سے، کیونکہ ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے جو ہمیں قوت دیتا ہے، جو ہمیں ترتیب دیتا ہے، جو ہمیں طریقہ سلیقہ عطا کرتا ہے، جو ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کے لیے، پرستش کرنے کے لیے، دعائیں کرنے کے لیے، کلام کو سیکھنے سکھانے کے لیے بڑی نظم و ضبط جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اس سارے فضل کے لیے جو یسوع نے ہم پر کیا ہے، ہم اس کا شکر کرتے ہیں۔ یہ جو حوالہ ہم نے تلاوت کیا ہے، یہ واقعہ، یہ تلاوت جو ہم نے پڑھی ہے، یہ ہے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اور یسوع کے زندہ آسمان پر جانے سے پہلے اس نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، مجھے دیا گیا ہے۔ اور اس نے اپنے اختیار کو ظاہر بھی کیا۔ اگر اس نے ہمیں اختیار دیا ہے تو پھر وہ ہمیں اصلاحات بھی دیتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کے کلام کی منادی کریں، اور اس کے پاس اختیار ہے اس لیے اس نے ہمیں دیا۔ اور جس کے پاس اختیار ہوتا ہے وہی حکم کرتا ہے، وہی حکم دیتا ہے، اور جس کے پاس اختیار نہیں ہوتا وہ کبھی کسی کو حکم نہیں دے سکتا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو والدین ہیں یا ہمارے جو والدین ہیں، اگر وہ اپنے بچوں کو، یعنی کہ میں والد ہوں اور میں اپنے بچوں کو اگر کوئی حکم دیتا ہوں تو یہ میرے پاس اختیار ہے۔ اپنے بچوں کو حکم دینے کا والدین کے پاس، ماں باپ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اختیار ہوتا ہے۔ اور ماں باپ جو ہیں، والدین جو ہیں، وہ اپنے بچوں کو حکم دیتے ہیں، ریکویسٹ نہیں کرتے۔ ایسے ہی ہے، یعنی کہ ہمارے بچے کوئی کام غلط کرتے ہو تو ہم کیا کریں گے؟ ہم ان کا ترلا لیں گے، منت کریں گے، ہم انہیں حکم دیں گے۔ کیوں حکم دیں گے؟ کیونکہ یہ ہمارے پاس خدا کی طرف سے اختیار ہے۔ کیونکہ لکھا ہے کہ اے اولاد والو اپنے بچوں کو اچھی تربیت کرو، اور اولاد کو بھی کہا گیا کہ تم اپنے والدین کے، اپنے ماں باپ کے کیا رہو؟ تابع رہو۔ یہ حکم بھی ہے۔ اور پھر اس طرح سے والدین اگر اپنے بچوں کو اختیار کے ساتھ حکم دیتے ہیں تو بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ، اپنے والدین کے حکم کی تعمیل کریں، یعنی کہ پورا کریں، نہ کہ اپنے والدین کو اکڑیں، نہ کہ اپنے والدین کے ساتھ ضد بازی کریں۔ اگر ہم والدین ہیں، ہمارے والدین ہیں، تو جب ہم اپنے بچوں کو کوئی حکم کرتے ہیں تو ہمارے بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی تعمیل کرنا چاہیے، اس کو پورا کرنا چاہیے، اس کو مکمل کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس اپنے بچوں کو حکم دینے کا اختیار ہے۔ اپنے بچوں کو، والدین کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کیا کریں؟ حکم کریں، حکم کریں۔ پہلی بات کہ والدین کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنے بچوں کو حکم کریں۔ کن کے پاس اختیار ہے؟
والدین کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنے بچوں کو حکم کرے، ہمیشہ اپنے بچوں کو حکم کیا کرے، ترلا نہیں، منت نہیں، التجا نہیں، التماس نہیں۔ اور کیوں ہم اپنے بچوں کو حکم کیا کریں؟ کیونکہ یہ خدا کی طرف سے ہمارے پاس اختیار ہے۔ کیا بھئی؟ اختیار ہے، اس لیے ہم اپنے بچوں کو حکم کرتے ہیں اور وہ مان بھی لیتے ہیں۔ چلو جو نہیں مانتے وہ بھی خدا کے کلام کو سنیں اور اپنے ماں باپ کی نصیحت کو، حکم کو مانے، تکمیل تک پہنچائیں یا پورا کریں۔ اور دوسرا اختیار جو ہے وہ کن کے پاس ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے ٹیچرز کے پاس۔ کن کے پاس؟ گھر میں اختیار جو ہے وہ والدین کا ہوتا ہے، پھر جب اسکول جاتے ہیں تو وہاں پر کس کے پاس اختیار ہوتا ہے؟ ٹیچرز کے پاس اختیار ہوتا ہے، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ حکم کریں کہ اب کلاس ورک ہے، کلاس ورک کے بعد جو ہے وہ کون سا ورک آتا ہے؟ ہوم ورک آتا ہے، اور ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ حکم کرتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، حکم کرتے ہیں کہ یہ فلاں کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، اتنا لکھنا ہے، اتنا پڑھنا ہے، اتنا ریڈ کرنا ہے۔ اور اس طرح سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے ٹیچرز کے حکم کو مانتے ہیں، کیونکہ ٹیچرز کے پاس اسٹوڈنٹس کو کام دینے کا اختیار ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اختیار ہے۔ چلو آگے تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات کن کے پاس جو ہے وہ اختیار ہوتا ہے؟ مالکوں کے پاس۔ کن کے پاس؟ مالکوں کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے۔ ہم جہاں کہیں بھی کام کرتے ہیں، کسی فیکٹری میں، کسی کمپنی میں، کسی کارخانے میں، کسی گھر میں، کہیں پر بھی ہم جاب کر رہے ہیں، ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو وہاں پر مالکوں کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے نوکروں کو حکم کریں، اپنے نوکروں کو حکم کریں، اور نوکروں کو بھی چاہیے کہ اپنے مالکوں کے آرڈر کو، اپنے مالک کے حکم کو جو ہے وہ مانیں۔ اور اس طرح سے والدین کے پاس اختیار ہے، ٹیچرز کے پاس اختیار ہے، مالکوں کے پاس اختیار ہے، اور اگلی بات جو ہے وہ کن کے پاس بڑا اختیار ہوتا ہے؟ وہ پولیس والے کے پاس۔ ایسے ہی ہے نا، وہ پولیس والے کے پاس بھی اختیار ہوتا ہے۔ یہ جو پولیس کا یونیفارم ہے نا، یہ اس کے اختیار کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا جو بیلٹ ہے، اس کے جو بوٹ ہیں، اور یہ ساری یونیفارم، سارا یونیفارم جو ہے یہ ایک پولیس والے کے اختیار کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ایک ہی پولیس والا، دیکھیے گا، اور ایک ہی پولیس والا آتا ہے، ٹریفک پولیس والا، ایک ہی، اور وہ کتنی ٹریفک کو جام کر سکتا ہے، چاہے ساری سڑک بھری ہو۔ جب وہ ایک ہی بات اشارہ کرتا ہے، ایک ہی بار اشارہ کرتا ہے، تو ساری ٹریفک کیا ہو جاتی ہے؟ جام ہو جاتی ہے، اسی طرح رک جاتی ہے، سٹاپ ہو جاتی ہے۔ کیوں پولیس والے ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس اختیار ہے، ان کے پاس، ٹریفک پولیس والوں کے پاس اختیار ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، وہ حکم دے سکتے ہیں۔ پھر اگر دوسری پولیس کو دیکھا جائے، رینجرز کو دیکھا جائے، اور پھر ایئر فورس کو دیکھا جائے، آرمی کی کسی بھی درجہ کے پولیس والے کو دیکھا جائے، تو ان کے پاس بھی جاتا ہے اختیار۔ اگر ایک پولیس والا بھی آ جائے نا، ایک پولیس والا بھی آ جائے، تو وہ یونیفارم میں آئے، اس کے پھول لگے ہوں، اور وہ مکمل یونیفارم کے ساتھ آئے، تو ایک ہی پولیس والا ہزاروں کی تعداد کو روک سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس اختیار ہے۔ اور اگلی بات جو ہے، پانچویں بات، وہ کس کے پاس اختیار ہوتا ہے؟ ایک ریفری کے پاس۔ کس کے پاس؟ اور ریفری کسی کھیل کا ریفری ہوتا ہے، کسی بھی کھیل میں کوئی ریفری ہوتا ہے، اور وہ ریفری جو ہوتا ہے، اگر کوئی کھلاڑی کسی طرح کی غلطی کرتا ہے یا کھیل کے قانون کو توڑتا ہے، تو پھر اس ریفری کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اسے سزا بھی دے سکتا ہے، اسے کھیل سے، ٹیم سے نکال بھی سکتا ہے۔ یہ ریفری کے پاس کیا ہے؟ اختیار۔ ریفری کے پاس کیا ہے؟ اختیار ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اختیار کن کے پاس ہوتا ہے؟ حکمرانوں کے پاس۔ ایسا ہی ہے، پھر اختیار کن کے پاس ہوتا ہے؟ حکمرانوں کے پاس، یعنی کہ جو حکومت کے لوگ ہوتے ہیں، گورنمنٹ لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی کیا ہوتا ہے؟ اختیار۔ یعنی کہ وہ چاہیں تو مہنگائی کو آسمان تک لے جائیں، اگر چاہیں تو وہ مہنگائی کو نیچے تک بھی لا سکتے۔ یعنی کہ حکمرانوں کے پاس بھی اختیار ہے کہ جو کوئی بندہ حکمرانوں کا، حکومت کے خلاف قانون توڑتا ہے، اسے سزا دے سکتے ہیں، اسے گرفتار کر سکتے ہیں۔ یہ زمین پر لوگ ہیں جن کے پاس، اور بھی لوگ ہیں جن کے پاس اختیار ہے۔
लेकिन 6 लोगों के बारे में हम सीख रहे हैं कि ये क्यों ऐसा कर, वालिदैन अपने बच्चों को क्यों हुक्म देते हैं, क्यों डांटते हैं, क्योंकि उनके पास, मेरे साथ रहिएगा, जो सुन रहे हैं मेहरबानी करके मेरे साथ रहिएगा, वालिदैन अपने बच्चों को क्यों हुक्म देते हैं, क्यों डांटते हैं, क्योंकि उनके पास टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को क्यों क्लास वर्क और होमवर्क देते हैं, काम देते हैं और उनसे काम लेते हैं, क्यों ये ऐसा करते हैं, क्योंकि इनके पास भी इख्तियार है। और मालिक जो है किसी भी जगह पर हम काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अगर वो अपने मुलाजमों को ऑर्डर करते हैं, हुक्म करते हैं काम के लिए, तो उनके पास भी जाता है इख्तियार। अगर पुलिस वाले जो हैं वो कानून तोड़ने वाले को गिरफ्तार करते हैं या सजा देते हैं, तो उनके पास भी जाता है। अगर किसी खेल का रेफरी जो है वो किसी खिलाड़ी को गलती करने पर या कानून तोड़ने पर, खेल का कानून तोड़ने पर उसे बाहर निकाल देता है बतौर सजा, तो रेफरी के पास भी जाता है इख्तियार। अब हुक्मरानों के पास भी जाता है इख्तियार। ये भी जो चाहे कर सकते हैं, इनको भी कोई रोकने वाला नहीं, खुदा ही है इनको रोक सकता है, वरना कोई पता इनको रोक नहीं सकता। ये सभी बात क्या है, ये सभी क्या है, बात क्या है। वालिदैन भी सिर्फ अपने बच्चों तक हैं, टीचर्स भी सिर्फ स्टूडेंट तक हैं, और मालिक भी सिर्फ मुलाजमों तक इख्तियार रखते हैं, पुलिस वाले भी इख्तियार रखते हैं किसी हद तक, और रेफरी भी खिलाड़ियों तक इख्तियार रखते हैं, और हुक्मरान भी एक इलाके या एक मुल्क, एक सूबे के लिए इख्तियार रखते हैं। लेकिन यीशु ने क्या फरमाया, आसमान और जमीन का कोई इख्तियार मुझे दिया है। यीशु के पास सिर्फ एक इलाके का इख्तियार नहीं, सिर्फ एक शहर का इख्तियार नहीं, एक मुल्क का इख्तियार नहीं, बल्कि कितनी चीजों का इख्तियार है। पहले आसमान, यानी कि आसमान पर जो फरिश्तगान हैं, आसमान पर जो खुदा के लोग या फरिश्तगान या दूसरी मखलूकात हो सकती हैं और फजा के अंदर हो सकती हैं, उन सब पर यीशु का क्या है, इख्तियार। फिर हम जो ज़मीन पर है, हमारे ऊपर भी किसका इख्तियार है, किसका इख्तियार है, बोलिएगा, सभी बोलिएगा। हम किसके इख्तियार से सब कुछ कर रहे हैं, यीशु के इख्तियार से। और फिर जमीन के नीचे क्योंकि लिखा है कि हर एक घुटना किसके आगे झुकेगा, किसके आगे झुकेगा, खां आसमानियों का, खां जमीनियों का, खां जमीन के नीचे, यानी कि हर एक घुटना यीशु मसीह के आगे क्यों झुकेगा, क्योंकि यीशु मसीह को आसमान का भी इख्तियार है, जमीन का भी इख्तियार है, और जमीन से नीचे तक भी इख्तियार है, क्योंकि वो कुल यानी कि वो मुख्तार कुल है, जिनको उसके पास सारा इख्तियार है, वो मुख्तार है, वो इख्तियार रखता है हर चीज पर। इसीलिए उसने कहा कि आसमान और जमीन का यीशु के पास कितना इख्तियार है, बताइएगा, इतना सा इख्तियार है। एक घर के लिए इख्तियार है, वालिदैन का सिर्फ अपने बच्चों तक इख्तियार है, टीचर्स का भी अपने स्टूडेंट्स पर। इस तरह से ये जो लोग मैंने बताए हैं, ये सारे किसी हद तक इख्तियार रखते हैं, लेकिन बाहर इनकी कोई नहीं सुनता। ऐसे ही ना, मैं अपने बच्चों को तो हुक्म कर सकता हूँ, ऑर्डर कर सकता हूँ, लेकिन बाहर वाले को ऑर्डर नहीं कर सकता। और इख्तियार जो है वो एक जिंदगी, हमारी जिंदगी का एक जज़ू है, और जिसके पास इख्तियार नहीं होता उसकी कोई नहीं सुनता, उसकी कोई नहीं सुनता। और अगर कोई बेइख्तियार मेरे पास आए और मुझे आकर कोई हुक्म दे तो मैं मानूंगा, या आपके पास और कोई जिसके पास इख्तियार नहीं वो आए और आप उसकी बात मानेंगे, हरगिज़ नहीं, इख्तियार के साथ। और यीशु ने क्या फरमाया, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया, कुल इख्तियार मुझे दिया। किसको दिया गया है, यीशु को। किसको दिया गया है, यीशु को दिया गया। इसलिए उसने कहा कि मुझे दिया गया है, मुझे सुमरात यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से फरमाया कि इस आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। और उसके इख्तियार के साथ उसने अगली बात क्या कही, इख्तियार मुझे दिया गया है और तुम जाओ, तुम जाओ। उसने कहा जाओ, कहाँ जाओ, कहाँ जाओ, कहाँ जाओ, जाओ तमाम दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी करो। जाओ, और जाकर करना क्या है, इख्तियार है। सुनिएगा, पहले यीशु ने हमें क्या दिया है, इख्तियार। मेरे साथ बोलिए ना, पहले यीशु ने हमें क्या दिया है, इख्तियार। और इख्तियार देकर क्या कहा है, जाओ। क्या कहा है, जाओ। और जाकर करना क्या है, करना क्या है, शाबाश, वेरी गुड। जाकर करना क्या है, अंजील की मुनादी। सभी बोले जाना, और जाकर करना क्या है, यीशु मसीह ने हमें भेजा है सोने के लिए नहीं, दुनिया के कामों के लिए नहीं, कोई फला दूसरे तीसरे काम करने के लिए नहीं। किस लिए खुदा ने यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को भेजा, जाओ
अब तमाम दुनिया में जाकर क्या करो? अंजीर की क्या करो? मुनादी। जो मुनादी का मतलब क्या है? मुनादी का मतलब है डंडोरा पीटना। क्या करना? किसी चीज का डंडोरा पीटना, यानी कि किसी को खबर पहुंचाना। पुराने अदनामे में क्या हुआ करता था? पुराने अदनामे से मुराद कि यानी कि पुराने ज़माने में किसी बादशाह का कोई अगर पैगाम रसा होता था ना, यानी कि जिससे वो पैगाम देकर भेजता था, तो वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता था। अपनी मर्जी से जो कुछ बादशाह उसे लिख कर देता था या लिखवा कर देता था या मुंह ज़बानी से कहता था कि देख तू मेरा पैगाम रसा बनकर जा रहा है और जाकर फिला इलाके में, फिला गांव में, फिला शहर में जा और जाकर मेरा पैगाम उन तक पहुंचा दे। इस बात का डंडोरा पीट, इस बात की खबर दे दे और इस बात की मुनादी कर। और अगर बादशाह अपने खादम को, अपने पैगाम रसाओं को किसी भी इलाके में भेजता था तो फिर वो क्या करता था? वो जाता था और किसी गांव और शहर के दरमियानी हिस्से को लेता था और फिर वो पैगाम देने वाला, एक तरफ फर्ज करें ये शहर है, एक तरफ ये शहर है और दूसरी तरफ ये क्या है? कोई गांव है। कोई क्या है? गांव। इन दोनों के दरमियान कोई ऐसी जगह वो ढूंढता था, ऐसी जगह होती थी जहां पर शहर के लोग भी मिल जाएं और जहां पर गांव के लोग भी, सबको इकट्ठा करता था, सबको इकट्ठा करता था और फिर क्या करता था? इकट्ठा करके उस बादशाह का पैगाम देता था, उस बादशाह का पैगाम देता था। और उस पैगाम में पैगाम देने वाले की कोई पसंद या नापसंद नहीं होती थी। जैसा पैगाम बादशाह उसे देता था उसी तरह का पैगाम जाकर वो लोगों को सुनाता था, खबर देता था, खबर सुनाता था, डंडोरा पीटता था, मुनादी करता था। और इस तरह से जो है वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता था। वो जो भी बोलता था अपने मालिक बादशाह की तरफ से, अपने आका की तरफ से बोलता था। और यीशु मसीह ने भी हमें अपने पैगाम रसा बनाकर भेजा है कि जाओ तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने क्या करो? सभी बोलो क्या करो? हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? शाबाश बोले, सभी बोले। पिछले लोग नहीं बोल रहे। हमें क्या करना है? अंजीर की मुनादी करनी है, अंजीर का ढंढोरा पीटना है। क्यों पीटना है? क्योंकि यीशु ने हमें भेजा है। यीशु ने क्यों भेजा है? कि यीशु के पास इख्तियार है। यीशु के पास इख्तियार है। यीशु के पास इख्तियार है। अगर मैंने पहले बताया कि पुलिस वाले के पास एक पुलिस वाले के पास भी उतना इख्तियार है जितना कि हजारों की तादाद में पुलिस वाले आ जाए तो उनका भी इख्तियार एक है। और फिर अगर एक पुलिस वाला आ जाता है तो हम क्या कहते हैं? ये थाने की तरफ से आया है, ये थाने का बंदा है। ऐसे बेशक वो अकेला हो, अगर हम भी अकेले खादम कहीं पर कलाम सुनाने के लिए जाते हैं तो हमें क्या दूसरों को, सुनने वालों को क्या करना चाहिए? क्या समझना चाहिए? क्या देखना चाहिए कि ये खुदा का खादम किसकी तरफ से आया है? किसकी तरफ से? सबको बोले ना। खादम बशर्ते कि हो खादम, वो खादम तो वो किसकी तरफ से आता है? किसकी तरफ से? खुदा की तरफ से आता है। और जो कोई खुदा की तरफ से आता है दुनिया की कोई भी ताकत उसे पैगाम पहुंचाने से रोक। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद जाओ और जाकर करना क्या है? अंजीर की मुनादी, अंजीर की मुनादी करना है। और फिर सब कौमों को क्या करना है? शागिर्द। जब हम लूका तबीर का अंजीरी बयान उसका 14वां बाब और उसकी 13वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर एक बादशाह के बेटे की शादी की तमसील है कि किसी बादशाह ने अपने बेटे की क्या की? शादी। और उसने अपनों को बुलाया। सुनिएगा, उसने किनको बुलाया? अपने खास लोगों को बुलाया। हमारे जब किसी बेटे की, बेटी की या कोई भी फंक्शन होता है, शादी ब्याह मंगनी हकीका सालगिरह वगैरह, तो हम किनको बुलाते हैं? बताइएगा, किनको बुलाते हैं? अपनों को जो खास होते हैं। फिर साढ़े तो बगैर गुजारा। वैसे भी जितनी महंगाई है, महंगाई के तौर से लोग समझदार लोग जो है वो खास लोगों को बुलाते हैं। बाकी समाज और कहते हैं भाई ठीक है जरा तू किलो गोश्त खाए ना वो असी दूसरे पासे ला लेंगे। यानी कि क्या है? यानी कि बादशाह ने अपने बेटे की क्या की? शादी। और शादी में किनको बुलाया? सभी बोले किनको बुलाया? शादी में हम किनको बुलाते हैं? फिर बादशाह ने अपनों को बुलाया ना। जब बादशाह ने अपनों को बुलाया तो अपने ना है, अपने
जैसे भी अपने लोग ने जरा जरा बातों हो गए ने बच्चे जवान हो गए ने और फिर ऑटोमैटिक तौर ते नाराज हो जाते कि सानू किते ना शादियां ते ना जाना पै जावे किते मंगनियां टंगना करनियां पै जाण किते कीतियां ते ना जाना पै जावे इस तरह वो अपने किसी ना किसी तरीका से अपने रिश्तेदारों से नाराज हो जाते हैं कि ना असीं जाने ते ना भाई असीं पैसे लाने हैं और ये रिवाज शुरू से है आपनों ने क्या कर दिया इनकार आपनों ने आने से क्या कर दिया इनकार बादशाह ने सोचा मेरा खाना इतना पका है मोटे मोटे बैल मैंने ज़बह कर रखे हैं इतना मैंने खर्चा किया इतना रेंज कर रखा है और मेरे अपने नहीं है मेरे अपने नहीं है और ये खाना कौन खाएगा ये खाना ज़ाया हो जाएगा इतनी केकें पकी हैं इतने मोटे मोटे बैल मैंने ज़बह कराए हैं और इतना मैंने खर्चा किया है ये क्या हो जाएगा ज़ाया क्या हो जाएगा और उसने अपने नौकरों को भेजा और कहा कि जाओ जाकर ऐसा करो जो मोड़ो पूछो गलियों बाजारों में आवारा खड़े हैं लूंजे खड़े हैं लंगड़े खड़े हैं बीमार खड़े हैं और उनको जो है वो ले आओ उनको भाई लूंजे भी मजदूरी का नाम है लूंजे लफ्ज़ बाइबल में है यानी कि लूंजों को लंगड़ों को और फिर बीमारों को किसी भी तरह के लोग कहीं पर भी खड़े हैं उनको ले आओ उनको और मालिक और नौकर जाते हैं और जाकर सबको क्या करते हैं ले आते हैं और बादशाह से कहते हैं कि बादशाह सामत तेरे हुक्म के मुताबिक हमने सड़कों बाजारों गलियों और मोड़ों पर जो लोग खड़े थे उनको हम ले आए हैं लेकिन जगह अब भी बाकी है जगह अब भी बाकी है बता इस जो खाली जगह को कहाँ से भरा जाए तो फिर बादशाह ने क्या कहा बादशाह ने कहा ऐसा करो कि खेतों में चले जाओ कहाँ चले जाओ खेतों में कहाँ चले जाओ खेतों में यानी कि जो खेतों में काम कर रहे हैं खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं किसी भी तरह की खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं और मुलाजिमों के पास जाते हैं उनके पास जाते हैं और लिखा है कि उनको मजबूर करो उनको बादशाह क्या कहता है मालिक क्या कहते हैं अपने मजदूरों को नौकरों को क्या कहता है कि उनको मजबूर करो मजबूर करके मेरे घर में लाओ ताकि मेरा घर मेहमानों से भर जाए उनको कैसे लाना है मजबूर करके कैसे अगर किसी ने पानी लगाया होगा अपने खेतों में तो उसे कहना है यहीं पर छोड़ दे और चल और अगर कोई गोडी कर रहा है किसी चीज को सब्जी वगैरह को तो उसे भी लाओ मजबूर कर दे जल्दी कर मजबूर यही है मजबूरी यही होती है ना फर्ज करो इतवार के दिन हमारी बहुत सी बहनें हैं जो सारा हफ्ता कपड़े नहीं धोती और इतवार के दिन वो मशीन लगा लेती है और सारा दिन सारा हफ्ता वो कहीं नहीं जाते लेकिन इतवार के दिन क्या होता है वो किसी रिश्तेदार किसी मेहमान के पास चले जाते हैं कि चलो इतवार उठी जाकर लगा मिला काम तो छुट्टी हो ही गई है यानी कि बहुत से हमारे भाई भी ऐसा करते हैं कि छुट्टियां जो है वो किसके लिए लेते हैं चर्च के लिए छुट्टी किस लिए लेते हैं इबादत करने के लिए कि आज भी साडा दिन है आज इतवार का दिन है कि साडा भी मसीह का दिन है आज असा छुट्टी करनी है या आज असा चर्च जाना है तो फिर जाते कितने ने जो जाते हैं उन्होंने गल करनी है ठीक है ना जो जाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ और फिर वो पता नहीं या कई जो है वो ना कुछ काम ना कार ना कितने आना ने जाना फिर वो नींदर पूरी कर चलो जो इतवार है करो नींदर पूरी सवेर उठे उठ के नाश्ता नुश्ता किया रात ਨੂੰ बंदा जो लेंदा ना फिर नींदर पोती होती ऐसे फिर फौरन लोग कहते इन्नी गरूद की चावे से रोटी खाती सी रोटी खाते कर सो गए भाई साहब जाग नहीं खुली ऐसा ही है ना और ऐसा ही है और फिर ऐसा हुआ कि क्या कहा मालिक ने क्या कहा बादशाह ने कि उनको खेतों में जाओ और जाकर मजबूर करो क्या करो मजबूर करो कि बहन जी यहीं पे कपड़े छोड़ दे बहन जी यहीं पे बर्तन छोड़ दे बहन जी यहीं पे काम छोड़ दे और वक्त कौन सा आ गया चर्च का वक्त कौन सा आ गया चर्च का चलो चर्च चले ते जेड़े आउंदे ने वो कई जान बुझ के कलाम के टाइम में चलो टाइम वाले जावांगे वो भी बैठ लो के आ जावांगे बुलाटा के आ जावांगे पाजी साहब आने पूछनी ना भाई तुसी आए नहीं ऐसे है ना भाई मेरे लिए जो आता है बेशक ना है हम किसके लिए आते हैं यहाँ हम किसके भेजे हैं बताइए हमें किसने भेजा है अगर हम चर्च आते हैं तो कौन किसने भेजा है कौन भेजता है हाँ जी अभी हमने सीखा है आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार यीशु के पास इख्तियार है और उसने इख्तियार के साथ हमें भेजा है और कहा कि जाओ क्या करो भाई अब वो सीधे बहाने बना लीजिए तो साड़ी मर्जी ऐसा ही है ना और यीशु ने हमें भेजा कि जाओ जाकर क्या करना है इंजील की बुनियादी देखिए ये इंजील की बुनियादी आप मेरे साथ कर रहे हैं कैसे किस तरह से जब आप गौर से इंजील को सुनेंगे इस इंजील को अपने दिल में रखेंगे और फिर दूसरों तक पहुंचाएंगे इसलिए हम सभी मिलकर क्या कर रहे हैं इंजील की
मुनादी करें, इसके मैंने कहा गौर से सुना करें, गौर से देखा करें, समझा करें और उसे कबूल किया करें, अमल में लाया करें, फिर दूसरों तक पहुंचाया करें। हालेलुया। क्योंकि हम बाइख्तियार है, बेइख्तियार है। हमारे पास इख्तियार है। किसकी तरफ से हमारे पास इख्तियार है बताइएगा? किसकी तरफ से इख्तियार है कि जाओ और जाकर इंजील की मुनादी करो? किसकी तरफ से हमें इख्तियार दिया गया है? किसकी तरफ से? फिर हमें कोई हीला करना चाहिए, बहाना बनाना चाहिए? हाँ जी, कोई बहाना हीला हमें नहीं बनाना चाहिए। हम जिस हाल या जिस हालत में, और दूसरी बात यह है, कल से मरी से मैं जब आया तो वहाँ का मौसम इस दफ़ा बहुत ही ज़्यादा जो है वो ठंडा, बारिश मुसलसल हो रही है। और फिर बहुत से हमारे जो खादम हज़रात हमारे दोस्त हैं वो बहुत से बीमार पड़े। चलो मैं वहाँ नहीं, मुझे बुखार चला, लेकिन घर आकर चलते, ठीक है ना। और इस वक्त भी हो सकता है मुझे थोड़ा सा बुखार हो, लेकिन नहीं, मुझे परवाह नहीं। मुझे किसी प्यार खुदा ना करें, मंजिद ना बता प्यारे तो बकरी गाले खुदा ना करें, लेकिन तो देखे ना तो मैं टोल पर सकड़ा फिर टोल पर के गिर दिया गया करें। हेलो भैया, खुदावंद की हुजूरी में आ जा करें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। खुदावंद आपको कुव्वत देगा, खुदावंद आपको मदद देगा। और मैं जब मुझे कल बहुत तेज बुखार था तो मैं सोच रहा था कि मुबश्शिर इमरान साहब से कहूँ तैयारी करें, फिर मैं क्या नहीं हूँ एक दिन सर आपको खुश करूँ, लेकिन मैंने कहा खुदावंद तू मुझे जोर दे और मैं इस हालत में भी तेरे कलाम की मुनादी करूँगा। हालेलुया। अगर आप थोड़ा माता बुखार हो तो कोई मसले इतने आ गया करो, इतने सारे मिलकर दुआ करना। हालेलुया। यीशु के पास इख्तियार है, उसने हमें भेजा है कि जाओ, क्या करो, जाओ। अगर आप साधु सुंदर सिंह स्वामी के बारे में आप देखें तो वो उसके पाँव से लेकर सर तक वो बदनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे वो जख्मी हुआ करता था, वो बीमार हुआ करता था, लेकिन फिर भी वो अंजील के काम को नहीं छोड़ता था। जरा मेरे साथ में पहला ग्रंथियों नामे बाप की 16 याद जरा निकाले तो यहाँ पर क्या लिखा है? मुबश्शिर इमरान साहब इसको पढ़ने में रहनुमाई करते हैं। पहला ग्रंथ नामे बाप की 16 याद को जरा पढ़िए जी मुबश्शिर साहब, क्या लिखा है? अगर खुशखबरी सुनाऊं तो, अगर खुशखबरी सुनाऊं तो, खुशखबरी क्या है? अंजील। क्या है? अंजील, खुशखबरी अंजील। अगर खुशखबरी सुनाऊं तो मेरा कुछ फख्र नहीं, तो मेरा कुछ फख्र, अगर मैं अंजील सुना रहा हूं तो मेरा कुछ फख्र, मैं अपने आप पर फख्र नहीं कर रहा कि मैं अंजील सुना रहा हूं, नहीं, क्योंकि मैं इख्तियार के साथ भेजा हुआ हूं और यीशु के हुक्म को क्या कर रहा हूं? पूरा। क्या कर रहा हूं? यीशु मसीह के अरशाद आज़म को, हुक्म आज़म की मैं तबदील कर रहा हूं। डोंट वरी, अगर मैं अंजील सुनाऊं तो मुझ पर कोई फख्र, मैं फख्र नहीं करता। जो अंजील सुनाते हैं वो फख्र ना करे कि मैं अंजील सुनाता हूं। जी आगे कल क्या, क्यों? क्योंकि ये तो मेरे लिए जरूरी बात, ये मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए क्या है? गौर से जरा सुनिए, अंजील सुनाना हमारे लिए क्या है? क्या बशीर साहब ने पढ़ा है? जरूरी बात। अंजील को सुनाना हमारे लिए क्या है? जरूरी बात। तो फिर क्यों नहीं करते? क्यों नहीं अंजील के जो है वो साथ जो है वो साथी बनते? क्यों नहीं अंजील के साथ जो है वो दोस्ती रखते? क्यों नहीं अंजील को दूसरों तक पहुंचाते? अगर मैं अंजील सुनाता हूं तो मेरा फख्र नहीं, क्योंकि ये जरूरत है। ये आगे बशीर साहब क्या लिखा है? बल्कि मुझ पर अफसोस है, बल्कि मुझ पर अफसोस है। अफसोस। कब अफसोस है? कब? क्यों अफसोस है? अगर खुशखबरी देखो मुझे सर, अगर मैं खुशखबरी ना सुनाऊं तो मुझ पर क्या है? अफसोस। मुझ पर क्या है? अफसोस कब होता है बताइए? हाँ जी, खुदा न खास्ता जब हमारा कोई अजीज हमसे बिछड़ जाता है तो फिर होता है फिर की कहनी है, चलो भी फलाने का हर की करके लिए, फलाने रिश्तेदार के पास क्या करने जाए? अफसोस, माफूल करने के लिए। अगर हम अंजील नहीं सुनते, नहीं सुनाते तो हम पर अफसोस है, हम पर मातम है, हम पर जिन्हें एक मरे बंदे तो बंदा अफसोस करता है, ये तो मतलब ऐसी की मरे असी की। अगर अंजील नहीं सुनाते तो मरे हुए हैं, हम मुर्दा हैं। खुदा हम पर क्या कर रहा है? अफसोस। अफसोस अगर तू अंजील को नहीं सुनाता, अगर तू अंजील को नहीं सुनाता। हम फिर थोड़ा सा पीछे चलेंगे। अगर हम अपने बच्चों को हुक्म देते हैं किसी काम के लिए, वो भी उनकी बुराई का, अगर वो हमारी बात को नहीं मानते तो हम फिर उन पर क्या करते हैं? अफसोस है। ऐसा ही ना बेटा, तेरे पे अफसोस है, बेटी तेरे पे अफसोस है। ऐसा ही है ना। इस तरह जब हम अंजील जो कि हमारी जरूरत है, हम इसको नहीं सुनते सुनाते, इस अरशाद आज़म को, हुक्म आज़म को पूरा नहीं करते तो रसूल क्या कहता है? मेरे लिए अफसोस है, मेरे लिए। अगर हम अंजील की मुनादी नहीं करते तो हमारे लिए क्या है?
हम पर क्या है? अफसोस है हम पर। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? दूसरा तिमोथी चौथे बाब की दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी आयत को जुमात में से कोई भी जो पहले निकाले को पढ़ने में नहीं करे जरूर। दूसरा तिमोथियस के नाम का खत जो कि पुरुष रसूल ने लिखा तिमोथियस के नाम, उसका चौथा बाब उसकी दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी आयत तक पढ़े तो क्या लिखा है? शाबाश, जो पहले निकाले वो जरूर पढ़ने में नहीं करे, भाइयों में से या बहनों में से। शाबाश, पढ़े पढ़े जल्दी करें। क्या लिखा है? कि तू कलाम की मुनादी कर वक्त और बेवक्त। मुनादी कैसे करनी है? मुनादी करनी है वक्त और बेवक्त। इसका क्या मतलब है? यानी कि जब भी हमें मौका मिले, जब भी हमें कोई बुलाए तो हमें क्या करनी है? अंजील की मुनादी। आगे बेटा क्या लिखा पढ़े? वक्त और बेवक्त मुस्तइद रहे हर तरह के तोहमत और तालीम के साथ समझाते और मलामत और अंजील के साथ मलामत स्वीकार और नसीहत। और अगर किसी को मलामत अंजील से की जाए, किसी को नसीहत अंजील से की जाए तो बहुत से लोग नाराज भी हो जाते हैं। चलो जी भाई साहब असली है जितने बाकी सही ने, यानी कि लिखा है कि अंजील के साथ उनको नसीहत और मलामत कर। आगे का लिखा है क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस, अपनी अपनी ख्वाहिशों के बायस बहुत से उस्ताद क्या कर लेंगे? ठीक है बेटा, बहुत से उस्ताद क्या कर लेंगे? अपने कानों की खुजली, यानी कि जितना लगी गली होते नाली उठ चली जे किसी क्या नहीं हो पादरी सही जनु छटो पर आज को कोई शान नहीं तो फटाफट अच्छी कानों की खुजली। ऐसा ही ना, कानों की खुजली हम लकीर के फकीर होते हैं। हम ऐसा करते हैं कि एक को छोड़कर दूसरे के पास चले जाते हैं, जब दूसरे से भी फायदा नहीं पहुंचता तो दूसरे को छोड़कर तीसरे के पास चले जाते हैं और फायदा में कहीं से भी नहीं मिलता। और याद रखिए यह है कानों की खुजली। जिन्हें जिन्हें कान आ गए कान भर देते रहे और साढ़े जिले को कान भर दिया उसने कर छड़ना नहीं भाई ये नहीं ठीक, ये तो कोई शान नहीं, ओदे को चलो, ओदे को भी कोई शान नहीं, तीसरे का चलो। याद रखिए अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो खुदा के साथ वफादार रहिए, खुदा के साथ वफादार। मैं कल एक बात पढ़ रहा था वो मैंने पढ़ी और लिखा था कि मतलबी कलीसिया। मतलबी कलीसिया इसका क्या मतलब है? मतलबी कलीसिया का मतलब ये है कि जब कोई बीमार पड़ता है, जब कोई बीमार पड़ता है और हम अपने मुकामी खादमों को बुलाते हैं कि आओ भी दुआ करो, आओ भी दुआ करो। और जब कोई शुक्रगुजारी की बारी आती है तो हम बाहर से बुला देते हैं, नहीं तो नामवर पादरी को बुलाओ और नामवर खातम को बुलाओ। ओ भाई वो बड़ा कलाम सुनाता है, सिर्फ वो जोश चल भाई खानदान कलाम और सुनाता है कि नहीं। यानी कि जिस तरह आप अपनी बीमारियों में, अपने दुखों में, अपनी मुसीबतों में, अपने गमों में अपने मुकामी पादरी साहब को शरीक करते हैं, इसी तरह सारी खुशियों में भी अपने मुकामी पादरी साहब ही को जो है वो शरीक किया करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो बेस्ट ऑफ लक, अगर ऐसा नहीं करते तो हम मतलबी और मतलबी खादम भी हैं, मतलबी खादम भी हैं कि भाई आओ हदिया भी मुझे दो, त्यागती भी मुझे दो और फिर सारा चंदा भी मुझे दो, सब कुछ मुझे दे दो। लेकिन जब जनाजे की बारी आए भाई मेरे पास टाइम नहीं, किसी और पादरी को भी। अगर कलीसिया मतलबी है तो फिर खादम भी मतलबी है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि यीशु ने हमें इख्तियार के साथ भेजा है तो हमें इख्तियार को जांचना चाहिए, हमें जाना चाहिए, हमें झील की बुनियादी करनी चाहिए। ये हमारी जरूरत है। अगर नहीं करते तो हम पर अफसोस, हम पर अफसोस अगर हम अंजील की बुनियादी नहीं करते तो। इसलिए वो कहता है कि कानों की खुजली के बायस बहुत से उस्ताद बना लेंगे। और याद रखिए जब हम बहुत से उस्ताद बनाते हैं ना तो फिर हम कष्ट में पड़ जाते हैं। जब बहुते गिरजा से बहुते पादरियों को जान लग पे तो खुद असी फिर जो ना और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हम की करिए, कितने को मंगिए, कितने को शिफा लीजिए, कितने को असी ठीक होइए। सानू तो दिलों राम इधरों चंगा नहीं कि बंदा खुदा ने वफादार चल के इको नहीं रहे वफादार तो फिर वो तो राम नहीं होता है। ऐसा ही है ना। और ये ईमान जो है, ईमान के सबब से क्या लिखा है? पादरियों के वसीला से शिफा नहीं, पादरियों के वसीला से निजात नहीं। क्या लिखा है? ईमान लाने वालों के दरमियान। किन के दरमियान है?
साथ चल रहे हैं तो समझे कि आपके लिए शफाअत जारी हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। और कानों की खुजली के पास ना तो पादरी बदले और ना ही चर्च बदले और ना ही खुदा को बदले, ऐसे ही है ना। और ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कानों की खुजली के मुताबिक या भाई क्या कर लेते हैं, बहुत से उस्ताद ना बनाए। मैंने भी बहुत बना कर देखे थे, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। आगे फिर को चौथे बात की कार होते रही, आपको जरा पढ़े। शाबाश, क्या लिखा? मैं पस्त होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हाँ जी, मैं क्या करना जानता हूँ? हूँ। पस्त होना भी जानता हूँ पस्त होना भी जानता हूँ, नीचा होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब हालतों में हर एक बात और सब हालतों में मैंने शेर होना और मैंने शेर होना, भूखा रहना भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा और बढ़ना और घटना सीखा है। सीखा। ये हमारी जिंदगी के हालात है। वो कहता है कि हर हाल में, हर हालत में जब कि खुदा मेरे साथ है तो मैं यीशु मसीह में पस्त होना भी और बुलंद होना भी, फिर मैं घटना और बढ़ना भी, फिर मैं बीमार होना और तंदुरुस्त होना भी जानता हूँ। आगे बेटा क्या लिखाते हैं, मैं क्या ध्यान कर पड़े। जो मुझे ताकत बख्शता है क्योंकि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसमें मैं सब कुछ, हालेलुया, हालेलुया। यानी कि जब यीशु ने हमें भेजा है तो उसने इख्तियार दिया है, और जब उसने इख्तियार दिया है तो फिर उसका वादा है। जब हमें मत्ती रसूल का इंजील ज्ञान उसका 28वां बाब 20 आयत को पढ़े तो क्या लिखा है, मैं आपसे हमेशा तुम्हारे, अब से लेकर हमेशा तुम्हारे। इसलिए यीशु कहता है कि वो मुझे ताकत बख्शता है, वो मुझे, चाहे हम बीमारी की हालत में भी हो, चाहे हम कमजोरी की हालत में भी हो, जब हम खुदा के कलाम की मुनादी करें, अंजील की मुनादी करें तो फिर यीशु में क्या देता है, ताकत, और हम उसमें सब कुछ कर सकते। एक दफा आगे तो बढ़कर देखिए, एक दफा कमजोरी में आगे बढ़कर देखें, बीमारी में भी आगे बढ़कर देखें, मुश्किलों परेशानियों में भी आगे बढ़कर तो देखें। जैसा कि पुरुष रसूल कहता है कि मैं हर हालत में अंजील की बुनियादी करना जानता हूँ। क्यों? कि वो मुझे क्या देता है, ताकत। कौन देता है ताकत? जब हम बुद्धिल हो जाते हैं, हम दिल हार जाते हैं कि नहीं अब हमसे नहीं होगा, हमसे दुआ भी नहीं होगी, हमसे कलाम भी नहीं पढ़ा जाएगा, नहीं सुना जाएगा, नहीं सुना जाएगा, हमें चर्च भी नहीं जाना पड़ेगा, इतना मैं कमजोर, इतना बीमार हूँ, तो याद रखिएगा ताकत नहीं आएगी। अगर हम एक कदम बढ़ाएंगे तो दूसरे कदम के साथ खुदा यीशु मसीह हमारे साथ है। मैं अब से लेकर दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। तो हमें ताकत कौन देता है बढ़ने की, बताइएगा? यीशु। कौन ताकत देता है? यीशु। क्या फिर हमें हिम्मत हारना चाहिए, हमें घबराना चाहिए? क्योंकि उसमें पस्त होना भी सीखे, बुलंद होना भी सीखे, उसमें बढ़ना भी सीखे और घटना भी सीखे। हर हालत में जो है वो हमेशा अंजील के साथ वफादार रहे, क्योंकि इसको सुनना हमारी जरूरत है। अंजील को सुनना और सुनाना हमारी जरूरत है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर हम पर क्या है, अफसोस ना हो, क्योंकि हम मुर्दा नहीं, हम जिंदा है। हम मुर्दा है कि जिंदा? तो फिर लिखा क्या, सोने वाले जाग और मुर्दों में से तो मसीह का नूर तुझ पर यीशु के पास इख्तियार है, यीशु के पास सुनिएगा, यीशु के पास क्या है, और उसने हमें इख्तियार से भेजा, उसने हमें इख्तियार से भेजा, कहा कि जाओ, और जाकर करना क्या है, अंजील की मुनादी। और फिर क्या करना है, अंजील की मुनादी कहाँ तक करनी है, बताइएगा कहाँ तक? हाँ जी, जमीन की इंतहा तक। शाबाश, दुनिया या जमीन की इंतहा तक। कहाँ तक करनी है? चाहे हालत या हालात कैसे भी हो। अगर आप शागिर्दों के बारे में पढ़े तो फिर उनसे ज़्यादा हम पर कोई मुश्किल है, तो इतनी मुश्किलों परेशानियों में भी अंजील को सुनाते हुए, अंजील सुनाने से बाज ना है, क्योंकि उनकी ज़रूरत थी। उनकी क्या इब्तदाई कलीसिया की ज़रूरत थी, तो क्या आज हमारी ज़रूरत नहीं? अंजील हमारी ज़रूरत है। सब कुछ अंजील में से मिलता है। हम बरकतें जो हैं वो किसी खादमों से नहीं, हमेशा बरकतें किससे लेते हैं? अंजील से। किससे? अंजील से बरकतें लेते हैं। अगर अंजील के साथ हम वफादार हैं तो यकीनन खुदा कभी भी हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा। मैं देखो दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हो, और उसने इख्तियार के साथ हमें भेजा है, और हम अंजील की मुनादी करते हैं। कहाँ तक? ज़मीन की, और वो हम तक हमारे साथ कहाँ तक है? कहाँ तक?
तक। दुनिया के कब तक वो हमारे साथ? कहाँ तक? दुनिया के क्या हमारा ईमान है तो हमारे साथ है, हमारे साथ है। वो हमें कुव्वत देता है, ताकत देता है और हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। अपने इंजील की मुनादी करना, खुदावंद इस इंजील की मुनादी के बारे में कलाम सुनने का और कबूल करने का और अमल में लाने का हम सबको कसरत से फजल